Ravi turned and gazed at the shabby-looking, sturdy old slippers. He beamed and nodded. These are just the right size. And he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. रवि ने देखा और वो रुक गया और उसने कहा कि ये चप्पल किसकी हैं? ये जो हैं बिल्कुल ठीक साइज़ है उनके लिए। और मृदु और उसने वो चप्पल उठा ली। मृदु और मीना भी उसके साथ साथ वहाँ उसके भिखारी के पास चली गई। Here said Ravi to the beggar. Here said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. In a minute, he has vanished around the corner of the street. ये रवि ने भिखारी के सामने वो चप्पलें रखते हुए कहा, इन्हें पहनो और फिर वापस मत आना। भिखारी ने चप्पलों की तरफ देखा और तौलिया जल्दी से कंधे पर डाला, अपने पैर उनमें फंसाए और बच्चों को आशीर्वाद देते हुए चला गया। 1 मिनट में वह फिर गली से निकला और वो गायब हो गया। The music master came out of the house and took an unappreciative look at the 3 of them sitting quietly under the tree playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. संगीत मास्टर घर से बाहर आया और तीनों बच्चों की ओर, जो कि पेड़ के नीचे बैठे कंचे खेल रहे थे, असहनीय नज़रों से देखा। फिर उसने अपनी चप्पलों को वहाँ पर ढूंढा जहाँ उसने उन्हें उतारा था। Lali, he called after a few moments. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. लाली, उसने कुछ क्षणों बाद पुकारा। वह जल्दी से उसके पास आई। क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है बेटी? मुझे याद है कि मैंने यहाँ उतारा था। Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali and the music master search every corner of the veranda. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on, saying they cost a whole month's fees. Do you know? रवि, मृदु और मीना ने चुपचाप लाली को देखा और संगीत मास्टर ने बरामदे के प्रति कोने में उनको अपने चप्पल को ढूंढा। उसने बुद्धिमानी से चारों ओर देखा, रेलिंग के ऊपर देखा और गमलों के बीच में भी झांका। बिल्कुल नहीं थी, वे बिल्कुल नई चप्पल थी। मैं माउंट रोड जाकर उन्हें खरीद कर लाया था, वह बोलता गया। तुम्हें पता है वह मुझे पूरे महीने की तनख्वाह के बराबर पड़ी थी। जल्द ही लाली और माँ को यह बताने चली गई। रुकुमनी परेशान प्रतीत हो रही थी। आई उसके साथ पाती भी थी। Soon Lali went in to tell her mother. Rukumani appeared looking harassed with Pati following her. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door. Worried Pati. वे कहाँ हो सकती हैं? यह सोचना सचमुच बहुत ही दुख की बात है कि किसी ने उन्हें चुरा लिया है। कितने सारे फेरी वाले दरवाजे पर आते हैं। पाती ने अपनी चिंता जताई। रुकुमनी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were
curiously quiet, went on the more slowly, seen anyone lurking around the veranda. A sharp V-shaped line and formed between her eyes. Another straight, tighter one appeared in one place of her usually soft, pleasant mouth. Rukumani was angry, thought Mridu, with a silver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself. रुकुमनी ने रवि और मृदु और मीना को जो पेड़ के नीचे बैठे थे देखा। बच्चों, क्या तुमने उन्हें शुरू किया? और फिर उनको ज़रूरत से ज़्यादा शांत देखकर और धीरे से बोली, किसी को बरामदे में घूमते देखा है? उसकी भौहों के बीच में वी का आकार उभर आया। उसने नर्म सुंदर मुख की जगह एक सीधा कसा हुआ मुख उभर गया। रुकुमनी गुस्से में थी। मृदु ने कांपते हुए सोचा। Taking a deep breath, she cried, Rukumani, there were a beggar here. Poor thing, he had such boils on his feet. तो ये जो है रुकुमनी ने मृदु ने फिर सोचा कि अगर उसको लाली को अगर पता चल जाए कि उस बैगर के पैरों में जो थे वो बहुत ज़्यादा जले हुए थे, उसमें छाले थे, तो शायद उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। और फिर वह रुकुमनी ने फिर गंभीर होकर रवि और उसे की ओर मुड़ते हुए देखा और फिर बोली कि रुकुमनी, देयर वॉज अ बैगर, यहाँ पर एक भिखारी आया था, वो बहुत ज़्यादा गरीब था और उसके पाँव में छाले पड़े हुए थे। सो सैड रुकुमनी, turning to Ravi, you gave the music master chappals to that old beggar who turns up here. रुकुमनी ने कहा, तो क्या तुम रवि से पूछा कि क्या तुमने मेरे म्यूजिक मास्टर के चप्पल उस ओल्ड बैगर को दे दिए हैं? चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पाती, बच्चों आजकल पाती जो है वो गुर्राई। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. अम्मा, क्या आपने हमें कर्ण के बारे में नहीं बताया था, जिसने अपनी सारी चीज़ें यहाँ तक कि अपने सोने के कुंडल भी दान कर दिए थे? वह कितना दयावान और परोपकारी था। Silly, snapped रुकुमनी, Karna didn't give any other people's things. He only gave away his own. बेवकूफ़, रुकु चिल्लाई, कर्ण ने किसी दूसरे की चीज़ें दान नहीं की थी, वह केवल अपनी ही चीज़ें दान में करता था। But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet, Ravi rushed brashly on. And Amma, if they didn't fit, would you really not have minded? रवि ने फिर बोला कि मेरी जो स्लीपर्स थे, मेरे जो चप्पल थे, वो उस भिखारी के पाँव में नहीं आती, और यदि वे आ जाती तो क्या आप बुरा नहीं मानती? रवि सैड रुकुमनी, वेरी एंग्री, नाउ गो इनसाइड दिस मिनट। रवि, रुकुमनी अब ज़्यादा गुस्से में बोली, इसी समय अंदर जाओ। She hurried indoors and brought out Gopu Mamma's hardly worn new chappals. These should fit you, sir. Please put these on. I am so sorry. My son has been very naughty. The music master's eyes lit up. He put them on, trying not to look too happy. वह अंदर गई और गोपू मामा की कभी कभार पहनी हुई नई चप्पल ले आई। वे ये आपको आ जाएंगी सर, कृपया इन्हें पहन लीजिए। मुझे माफ़ कीजिए, मेरा बेटा बहुत शरारती है। संगीत मास्टर ने
संगीत मास्टर जो थे अब उनकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उनको जो है नई चप्पल मिल गई थी और उन्होंने पहन लिया। यह जानते हुए वह बहुत खुश हुई। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू। These days, children have no respect for elders. What to do? A Hanuman incarnate, only Rama can save such a naughty fellow. Rukumani's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. खैर, मुझे लगता है यह ठीक है, आजकल बच्चों को बड़ों का आदर सम्मान नहीं है। क्या करें, हनुमान के दूत केवल राम ही इन शैतानों से बचा सकते हैं। रुकुमनी की आंखें चौंध गई। उसने रवि को बंदर, चाहे पवित्र बंदर ही सही, कहलवाना अच्छा नहीं लगा। वह सीधी बूथ की भांति दरवाजे पर खड़ी रही। साफ था कि वह बहुत ही जल्द बाहर भेजना चाहती है। When he had clattered off in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? Thank you. Your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he's always in such hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he come home. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? जब उसने अपनी नई चप्पल पहन ली, वह बोली, मृदु, अंदर आकर कुछ खा लो। सच बताओ, तुम बच्चे ऐसी बातें कैसे सोच लेते हो? शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा ये चप्पलें काम पर पहनकर नहीं जाते। रसोई की और मृदु और मीना ने के साथ जाते जाते वह अचानक से हंसने लगी। परंतु वे हमेशा जैसे ही घर आते हैं अपने जूते और जुराबें उतार कर चप्पलें पहनते हैं। वो जल्दी करते हैं क्योंकि उन्हें फ्रेश होना होता है, उन्हें थोड़ा सा फ्री होना होता है, क्योंकि वो थक कर आते हैं। तो तुम्हारे मामा आज शाम को क्या कहेंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पल जो है वो संगीत मास्टर को दे दी हैं। Now your lesson is completed here. अब आप इस लेसन को अच्छे से रीड करेंगे। At least 2 times you have to read this lesson. Okay?